So what exactly is BNI or CC? Got an opportunity of bringing BNI in Nagpur, changing the way really Nagpur was doing business. So what exactly inspired you to stop your आप architecture practice कर रहे थे, stop that practice and then get into BNI? I think I did not had the skills. बहुत कुछ अलग सा सीखा है, बहुत कुछ कॉमन नहीं है. So but the shift is very different, you know ना architecture बहुत अलग field है. The word I would It's a not little choose that controversial. vocabulary. Okay. दोनों के end से होगा तो फिर ego clashes होंगे ही नहीं. So ना? true. Every day is a new challenge. डर नहीं लगता challenges से, new challenges से? Balance करना होगा. Hi, this is Chirag Bajoria from the Chirag Bajoria Show. Today our guest is Mr. Bhavesh Tahal Ramani, the Executive Director of BNI Nagpur. Welcome to the show, sir. Thank you so much, Chirag. So glad to have you here. Same here, brother. Sir, मैंने तो किया introduce, but please introduce yourself. मेरा introduction, I would like to start born and brought up in Nagpur. Did a lot of my education in Nagpur itself. उसके बाद बॉम्बे जाने का opportunity मिला. वहाँ गया, आर्किटेक्चर किया फ्रॉम सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर. कॉलेज में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स साथ में करने लग गया था विथ माय कॉलेज प्रिंसिपल. हिज नेम इज राजीव मिश्रा. आई रियली एडमायर हिम इन माय लाइफ. उनके साथ काम किया. उसके बाद नागपुर शिफ्ट हुआ. started my practice in partnership with somebody in Nagpur. Post that, got an opportunity of bringing BNI in Nagpur. Riddhi came up with this idea, my wife, and joined hand with her in terms of bringing BNI to Nagpur, changing the way really Nagpur was doing business, and currently leading BNI in corporate This connections was in when? Nagpur. That was 2017 when we started thinking of bringing BNI to Nagpur. 8 years. 8 years, yeah. Great. So what exactly is BNI or CC? BNI और CC ये क्या है? So BNI, the full form is Business Network International and Corporate Connections is the full form of CC. BNI मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बिजनेस ओनर के पास कोई पहुँचता नहीं है ये क्वेश्चन लेके चल बता कहाँ हेल्प करूँ. कहीं नहीं होता. आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो या आप लार्ज एंटरप्राइज हो, माइक्रो एंटरप्राइज हो, किसी भी लेवल पे हो, nobody really bothers about a business owner. Correct. उससे सिर्फ डिस्काउंट चाहिए, उससे कितना नेगोशिएट कर सकते हैं ये चाहिए. Agreed. But these platforms, both these platforms at different levels are helping business owners कि चल बता कहाँ हेल्प करूँ. So it becomes a community where people are not only interested in growing the business but also helping others. Great. So what exactly inspired you to stop your आप architecture practice कर रहे थे, stop that practice and then get into BNI? It was actually a big decision. जैसे मैंने बताया मेरे इंट्रोडक्शन में कि कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तब से इंटीरियर प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया. सो वन ऑफ दोस वेरी क्लोज टू माय हार्ट प्रोजेक्ट इज मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हॉल का रेनोवेशन किया था मैंने. Oh. जहाँ पे लास्ट स्पीच ऑफ आर पास्ट लेट प्रेसिडेंट APJ Abdul Kalam gave. So that convocation hall was redesigned by me. So अगर उसकी बात करें तो तब से प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस फिर छोड़ देना, इस पूरे प्रोसेस में एक ही चीज़ मुझे जब डिसाइड करनी थी कि BNI या आर्किटेक्चर, आई सेड आर्किटेक्चर कैन बी, आई कैन गेट बैक टू आर्किटेक्चर लेटर. Correct. मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वापस आ सकता हूँ, लेकिन BNI को आज टाइम देना पड़ेगा, इसको डिले नहीं कर सकते. सो आई थॉट आई विल गिव माई सेल्फ 10 years ऑफ टाइम टू कम बैक टू आर्किटेक्चर. दैट वाज वन. एंड द सेकेंड आइडिया इज, तब मुझे चाहिए था कि मेरा नेटवर्क बढ़े. मैं किन लोगों के साथ रोज़ उठता हूँ, बैठता हूँ, किन लोगों के साथ बात करता हूँ, ये मुझे अगर ये डिसाइडिंग फैक्टर था दैट आई विल चूज BNI ओवर आर्किटेक्चर. So but the shift is very different, you know ना architecture बहुत अलग field है, BNI leadership होती है, एक workload का अलग बहुत अलग चलती है दोनों चीज़ें. तो skill set आपके पास में already था या आपने develop किया है over the years? I think I did not had the skills. I have developed it. Basic skills होंगे तभी शायद BNI के interviews और वो सब क्लियर किए. Okay. तो बेसिक स्किल्स होंगे, बट अगर मैं वो भावेश देखूं 2017 वाला और आज 2025 वाला, तो स्किल्स तो डेवलप किए गए, शायद 90% स्किल्स डेवलप किए गए. Wow. एंड द रीज़न आई वुड थिंक
की skills develop हो पाए Hmm. is blindly believing people who have experienced before us the challenges that we face here. It doesn't really seem like a challenge क्योंकि हम उन लोगों से बात कर लेते हैं जो हमें लगता है पुराने रीजन है, उन्होंने तो एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा. It becomes a cakewalk. Okay, let's dive into the questions. I have a lot of Sure. questions for you. Uh, okay, so what has been one of the most unexpected lessons that you have learned about leadership over the years, which is not so very common? आपने कुछ अलग सा सीखा है? बहुत कुछ अलग सा सीखा है, बहुत कुछ कॉमन नहीं है. अगर इसकी बात करूं तो बहुत बार when so both these organizations BNI and Corporate Connection are too much to do with relationship building. Correct. तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक बहुत बढ़िया फैक्ट ये है कि आप जिसके साथ बैठे हैं उसकी कहानी सुन रहे हैं, उसको मानने लगते हैं. Okay. तो कहानी एक साइड की सुन के मानना और जिसके बारे में कहानी चल रही है उसमें वो हो सकता है एक कैरेक्टर आपके सामने जो बैठा हो वो हो और तीसरा एक इंसान हो वो हो, तो उसके बारे में इमेज ना बनाना, इवन आफ्टर लिसनिंग टू पर्सन ए बी की इमेज ना बनाना अपने दिमाग में, दैट इज आई वुड think the biggest lesson that I've learned. This happens almost every time. This happens every time. And ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनने का ये ड्रॉबैक है कि आप उससे इतने गहरे हो जाते हो हाँ. कि बाकी लोगों से आपका इंटरेस्ट कटते जाता है. आप इविलाइज कर देते हो उन लोगों को. Evilize the word I would It's a not little choose that controversial. vocabulary. Okay. नहीं वो vocab मेरा मैं avoid करूँगा वो vocab. Okay. It is actually having that right balance. मैं आपका पर्सपेक्टिव सुन रहा हूँ, ट्रूथ नहीं. That's a big thing according to me. 100%. एक साइड का सच जो होता है वो पर्सपेक्टिव होता है. Can you describe one of the moments in your 7-8 years of journey of BNI and CC that you think that your leadership was tested, was truly tested? अरे हर रोज होता है. रोज होता है. हर रोज. Every day is a new challenge. Every day is a new challenge and fortunately it is a new challenge. वो बोर हो जाएंगे ना, नहीं तो सेम चैलेंजेस से तो आप बोर हो जाओगे. डर नहीं लगता चैलेंजेस से, न्यू चैलेंजेस से? नहीं लगता. अब वो बिल्ड हो गया है चैलेंजेस से लड़ने की कैपेबिलिटी, या फिर एक यूज्ड टू हो जाते हैं कि हाँ नहीं अब चैलेंजेस के बिना मजा नहीं आ रहा, ऐसा भी होता है? यूज्ड टू यू कैन से. हाँ. एक पर्सपेक्टिव ये भी हो गया कि आज नया क्या सीखा. एंड आई रिमेम्बर हमारे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नासिक रीजन के. हिज नेम इज विक्रम माथुर. और विक्रम माथुर का जुहू बीच पे बॉम्बे में ही हैज अ पेंट हाउस. 2 फ्लोर उनके हैं. हम जब भी एक समय था जब भी बॉम्बे जाते थे वो विक्रम के घर पे दर्शन देना इंपॉर्टेंट होता था. वो मंदिर की घंटी जैसे बजाते हैं वैसे विक्रम के घर पे ही रुकना होता था. सो दैट मोमेंट इट सो हैपेंड दैट विक्रम ने एक चीज बोला and there was a lot of discussion because Vikram was in BNI Bombay since ages. उन्होंने 10 chapters launch किए BNI Bombay में and then started BNI नासिक. तो उनके साथ वो कम्युनिकेशन में रात में 1:30 बजे हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है. Both of us of course had glasses in our hand and a lot of deep conversations are going on. तब उन्होंने बोला भावेश trust me if you don't get a challenge tomorrow you will not grow. So challenges तो रोज आते हैं. उसको देखने का पर्सपेक्टिव उस दिन से चेंज हुआ कि यार आज चलो कुछ तो नया सीखने मिलेगा. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट कम्स एवरी डे. बिगेस्ट चैलेंज दैट टेस्ट्स अस एंड आई सेड इट टेस्ट्स अस एवरी डे इज हमारा वर्किंग सिस्टम में बहुत सारी लीडरशिप टीम्स होती हैं. करेक्ट. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होके पूरा सिस्टम रन करते हैं. तो लोगों के आपके साथ रिलेशन बन गए, वो आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे और आपसे सोल्यूशन मांगने की कोशिश करेंगे. How to get out of that whole situation, right, and pass it on to the right person who's the decision maker, या सही लीडरशिप के पास भेजना, खुद जवाब ना देना जब आपके पास सोल्यूशन हो. वो एवरीडे टेस्टर है लीडरशिप. How do you do that without offending someone? कैसे बोलते हो? While you are maintaining the authority as well, but you have to be approachable as well. पर solution तो देना है. बिना ऑफेंड करे कैसे दोगे? I think pause लेना होता है उस समय. Okay. You have to ask couple of right questions कि आपको क्यों लगता है मैंने जवाब देना चाहिए और आपके सपोर्ट ने नहीं या आपकी लीडरशिप ने नहीं, क्या आपकी उनसे बात होगी. So right questions are something that they only answer what they want to listen.
Okay. or you want them to listen. All of us right questions are very important for us. 100%. So offending फिर भी हो सकता है लोगों को हो offending हो, सकता है. and you have to tell yourself that you're a human. आप हर बार किसी को offend नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता. So try your best. Great. So next would be what qualities do you look into someone before you decide to truly invest in a business relationship? Business मुझे किसी के साथ business partnership करनी है, उसकी बात करें. Not exactly business partnership, but business relationship in general. इन्वेस्टर काइंड ऑफ भी हो सकते हो या फिर पार्टनर भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ है. What exactly the qualities you look into them? I think one of the greatest quality, एक तो इंसान खुद कैसा है, Okay. उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. एंड ऑल ऑफ अस, हम जितने प्लेटफॉर्म्स देख लें, शार्क टैंक से लेकर एवरीथिंग, दे ऑलवेज से दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन यू. Correct. आई एम नॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टर, आई एम नॉट इनटू मल्टीपल बिजनेसेस. फिर भी जो एक दो बिजनेसेस हैं मेरे, उसके एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है अगर शेफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो शेफ जो पका रहा है उसकी खुशबू पकने से पहले बाहर नहीं आनी चाहिए. सो दैट वाज एन एनेक्डोट. अगर हम कुछ मिलके कर रहे हैं, सही टाइम पे इंफॉर्मेशन बाहर आएगी, हम साथ में कर रहे हैं. Okay. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी. शुरू होने से पहले हल्ला हो, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई अवॉइड. गलत तो क्या ही है. एवरीथिंग इज राइट ऑन अर्थ. व्हाट वर्क्स फॉर यू माइट नॉट वर्क फॉर मी. Correct. बट मुझे ऐसा लगता है इट शुड बी रेडी एंड देन आउट. वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. और हर एक को ये समझना, ये जचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. Who is the specific person who has been the greatest influence in your entire journey? एंटायर जर्नी, लॉट ऑफ पीपल. बट मैं ना जहाँ से जर्नी शुरू की थी ऑफ राइट एक्सपोजर, अ लॉट ऑफ एक्सपोजर दैट आई गॉट इज़ फ्रॉम द सिटी ऑफ बॉम्बे. और वहाँ का ही मैं कोट करना चाहूँगा इज़ मिस्टर राजीव मिश्रा, आवर कॉलेज प्रिंसिपल. उन्होंने एक्चुअली दुनिया टाइम से बहुत पहले दिखा दी. हाउ वी यूज्ड टू वर्क विद अ लॉट ऑफ political organizations, we used to work for government, a lot of government institutes, for our railway department and a lot of others. तो कैसे किस टाइम पे कौन बिहेव करता है, किस डेजिग्नेशन का इंसान बिहेव करता है, ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे होते हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, a lot of these things. So राजीव मिश्रा gave me, बॉम्बे से जो मुझे एक्सपोजर मिला होगा 50% वो एक इंसान से मिला होगा. Great. So 7 years of my life were in Bombay. But what I remember the most is Rajiv Mishra. I was expecting आप आपके वाइफ का नाम लोगे. यार वो that as I said, I've just started. You have just started. And that was. अब बोली तो कुछ अच्छा उनके बारे में भी. Riddhi in my life is confidence in my life. So अगर रिद्धि को बाजू रखा तो confidence, I was not in a very confident stage of life when Riddhi came Before she came in. हाँ, before she came in life. Post that there is no looking back. And you know her, you've seen her. She's full of confidence. अभी दोनों में से decision making authority final कौन होता है? Of course, the answer is very very simple. छोटे मोटे decisions वो लेती है. अच्छा. जैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, अच्छा. कौन सी नई प्रॉपर्टी लेनी है ना. और बड़े बड़े डिसीजन कि ट्रम्प ने अभी टैरिफ हटाना चाहिए कि नहीं, वो मैं ले लेता हूँ. अच्छा. So of course it's रिद्धि. 100%. हर घर की यही कहानी है. ऐसा बोल सकते हैं. हाँ. बट मेरे पास थोड़ा रिसर्च्ड कहानी होती है, रिसर्च डिसीजंस होते हैं. लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड इन द होल डिसीजन मेकिंग. Agreed. So this is one of my favorite questions. So what advice do you find yourself giving over and over to aspiring entrepreneurs? आप बार एक ही चीज़ एडवाइस दे रहे हो लोगों को. What is that one advice? आई थिंक बार मैं जो देना चाहता हूँ, हाँ, उसकी बात करें या बार जो मैं दे रहा हूँ, दोनों की बात करते हैं. रिलेशनशिप के बिना नहीं होता कुछ भी. और एडवाइस जो बार मैं देना चाहता हूँ इस ऑफिस में बैठ के बिजनेस नहीं होता. Okay. So one fine statement from a person that I've understood कि जहाँ ऑफिस में बैठते हो, अगर ऑफिस है, आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हैं, Right. अगर ऑफिस नहीं है तो शायद मोबाइल का स्क्रीन,
हैव यू डन समथिंग फॉर योर न्यू सेल्स टुडे? हम्म जब तक सेल्स सॉर्टेड नहीं है, ऑपरेशन सॉर्टेड करने का कोई मतलब नहीं है. So every day there should be some working for sales, if not sales. I would say every day there should be new sales. हम्म नए कस्टमर्स हर रोज ऐड होने चाहिए. ऑपरेशन सॉर्ट करने के लिए लोग मिल जाते हैं, सेल्स सॉर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके जितने पावरफुल लोग नहीं मिलते. ओके सो इफ, एज आई वाज सेइंग, इफ यू आर सिटिंग इन ऑफिस, आप जहाँ जिस दीवार को देख रहे हैं वहाँ बड़े से पेपर पे लिख के आप सबने चिपकाना चाहिए, इफ यू आर सिटिंग हियर हु इज डूइंग सेल्स. सो आई वुड से सेल्स स्टार्ट्स विथ मार्केटिंग एंड डोंट शाई अवे. आज बजट जो भी हो मार्केटिंग का, ऐसा बहुत बार आता है कि 100 करोड़ टर्नओवर हो जाएगा, 10 करोड़ टर्नओवर हो जाएगा, तो इतना मार्केटिंग शुरू करूंगा. मार्केटिंग शुड बी द फर्स्ट थिंग. इट ड्राइव्स द होल बिजनेस. सो सेल्स एंड मार्केटिंग में खुद को इन्वेस्ट करो एंड हैव राइट पीपल फॉर ऑपरेशंस. दैट्स द एडवाइस दैट आई गिव ओवर एंड ओवर. पर ऑटोमेशन के लिए ऑटोमेशन पे डालने के लिए हर चीज ही डेलीगेट करना जरूरी नहीं है. आप बोल रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग भी? एवरीथिंग. शायद ऑपरेशंस तो आपने बताया. ऑपरेशंस तो होना ही नहीं चाहिए इंसान ने वहाँ पे. ओके. फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग आल्सो. सेल्स एंड मार्केटिंग में भी डेलीगेशन हो सकता है और डेलीगेशन का प्रोसेस भी होता है. करेक्ट. अगर प्रोसेस फॉलो कर लिया तो डेलीगेशन भी हो सकता है. प्रोसेस एज इन. प्रोसेस एज इन, इफ आई वांट टू क्लोज अ क्लाइंट, आप जिसको सेल्स टीम हायर कर रहे हो चिराग, आप उसको साथ में लेके जाओ और उसको दिखाओ कि मैं कैसे करता हूँ. ओके. आप जैसे आपके क्लाइंट से बात करते हो, आपका सेल्स वाला नहीं करता बात. 100%. कैन आई गिव यू एन एग्जांपल? हैव यू किसी भी इंसान के पास अगर 100 सेल्स की टीम है, उसने सिर्फ इतना देखना कि उसका सेल्स टीम, हाउ इज ही इंट्रोड्यूसिंग हिम टू हिज प्रॉस्पेक्ट कस्टमर. ओके. अगर चिराग आपका सेल्स टीम है, तो आपका सेल्स टीम आपके प्रॉस्पेक्ट कस्टमर को आपका इंट्रोडक्शन कैसे देता है. ओके. दैट्स द फर्स्ट स्टेप वेदर दैट ऑर्डर इज गोइंग टू कम टू यू. बहुत बार सेल्स टीम जाके बोलते हैं, सर ऑर्डर दे दो, मेरी नौकरी चली जाएगी. तो वहां डिस्काउंट की बात आती है. बराबर. अगर आपको मैंने बाहुबली दिखा दिया कि सर हमारी जो कंपनी चला रहा है, क्या आदमी है, व्हाट अ मैन, ही कम्स विद सच अ ब्यूटीफुल विजन towards the schools, towards how people should dress up themselves if somebody is in school uniforms. तो वो उसने कैसे पहनना चाहिए ना, उनका पूरा 24 घंटा वही सोचने में जाता है. तो सेल्स टीम को साथ में लेके जाओ, सिखाओ कैसे आप सेल्स करते हो, तब डेलीगेट करो, ऐसे मत करो. क्योंकि फर्स्ट स्टेप डेलीगेशन नहीं होना चाहिए सेल्स में. फर्स्ट स्टेप आपने उसको दिखाना चाहिए. क्योंकि आपके बिजनेस से आपसे बेहतर सेल्समैन कौन? कोई नहीं हो सकता. नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. मुकेश अंबानी से भी बेटर सेल्समैन उसकी टीम में नहीं होगा. He carries that passion. So I'm very sure he would be delegating it in the right way. Any big business owner, उसने right तरीके से delegation किया है और वैसे ही होना चाहिए. तो step 1 probably delegation is one of my favorite topics. So step 1 आपने दिखाना चाहिए. You do, they see is what we say. The second step would be they do, you see. And then you can probably give them some corrections. पर ये बहुत बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है ना. जैसे B2B सेल्स में जब B2C इज अ डिफरेंट थिंग, B2B इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. B2C सेल्स आपका शायद कन्वर्ट हो जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में. B2C, ठीक है. B2B का कन्वर्जन साइकिल होता है 1 से 2 साल का. तो आप अगर सिखाते ही रहोगे खुद लोगों को, तो ये तो आपका टाइम ऑन अर्थ इज लिमिटेड. तो ये तो आपका काफी टाइम नहीं चला जाएगा. Makes so much of sense. वो जिस दिन आपको इट इज अ प्रोसेस. आप बात कर रहे हो प्रोसेस की. वो B2B सेल्स का प्रोसेस बहुत बड़ा है. एग्री. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही इज इनटू कॉरुगेटेड बॉक्सेस. वो बताता है, भावेश, एक नया क्लाइंट क्लोज करना कंटिन्यूअसली 2 साल उसके दरवाजे में नॉक करना होता है. करेक्ट. यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम एस्पेक्ट. बट वैसे में अगर मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो नॉक कर ही रहा हूँ, या सेल्समैन जा ही रहा है, सेल्समैन नॉक कर ही रहा है, और 10 में से 4 बार आप साथ में चले जाओ. Everybody has captured their way of doing sales. Correct. सबने किया हुआ है. मैं ये कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ सेल्समैन जाएगा, बात सिर्फ डिस्काउंट पे आएगी. आपको टॉप लाइन इंप्रूव करना है कि बॉटम लाइन भी देखना है. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. 100%. तो टाइम तो लगाना होता है. And आपका विजन क्या होना चाहिए एक बिजनेस? And in that kind of a situation,
बिजनेस ओनर बहुत बड़ा हो गया है, बहुत अच्छी बात है, उसने बड़ी सेल्स करनी चाहिए, छोटे नहीं, ओके लेकिन सेल्स तो करना चाहिए. एज इन आई वुड से सेल्स इज अ वेरी रॉ वर्ड. सेल्स इज एन आउटपुट. करेक्ट उसने मार्केटिंग करनी चाहिए. मार्केटिंग बंद नहीं करनी चाहिए. अगर मैंने क्रॉस कर लिया है 500 करोड़ टर्नओवर, तो मैं बड़े क्लाइंट्स के पास में जाऊं, लेकिन मैं उठूं वहां से और बाहर निकलूं इज वेरी इंपॉर्टेंट. great insight. या What kind of businesses do you think has more upside potential या which can grow exponentially? System driven या फिर people driven? Survive दोनों कर लेते हैं, सर्वाइव दोनों. लेकिन जो एक next level growth होती है वो people driven businesses से होती है या फिर system driven businesses से होती है? I think the combination of Combination? No, what you do is a combination of both. I do. क्योंकि BNI is kind of एक बहुत बड़ा system है, बहुत प्यारा system बना हुआ है, but people drive that. Correct. And leaders drive that. So वो एक combination है, but in raw sense, in general sense, Both. again both. सिस्टम्स के बिना स्केलेबिलिटी नहीं आएगी, और इंसानों के बिना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको. हैविंग पीपल इज हैविंग मोर टाइम. You have 24 hours, you hire 10 people, you now have 240 hours more. Okay. It's just like people are for buying more time. Okay. And systems are to make sure that the time is utilized well Okay. and not wasted. My personal take is कि system driven businesses शायद ज़्यादा grow कर पाए. People with no systems, of course, उसके comparison में system oriented with less people will grow higher. Okay. But right people, right system, दोनों को check करते हुए आगे आगे बढ़े. No, I'm not talking about the number of people. I'm talking about the quality of people. The quality of people. Quality of people. Work culture में toxic हो जाना, हाँ. आज 90% of work जहाँ पे workforce 10 से ऊपर है, टॉक्सिक कल्चर बन जाना बहुत ईजी है. क्रेडिट लेना किसी भी चीज का या किसी भी वजह से टॉक्सिक कल्चर बन जाना. सो हैविंग द राइट मिक्स ऑफ पीपल, नॉट द क्वांटिटी, वो आपके बिजनेस टू बिजनेस, बजट टू बजट डिपेंड करेगा, बट द राइट मिक्स ऑफ पीपल, ग्रेटफुल पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल, नॉलेजेबल पीपल, एंड जो ये होते हैं अप्रिशिएटिंग काइंड ऑफ पीपल, एक्नॉलेज करे जो दीज काइंड ऑफ पीपल, नो मैटर द साइज ऑफ बिजनेस. ये बहुत कम देखने को मिलता है आजकल. एटलीस्ट आई नो थोड़े बहुत बिजनेसेस तो उसमें मुझे बहुत कम देखने को मिला है. बट जो सिस्टम ड्रिवन बिजनेसेस है जहाँ ऐसा होना है, वहाँ ऐसा होना ही पड़ेगा. सो आई थिंक कि सिस्टम ड्रिवन ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल देगा अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल ग्रो करना है. सिस्टम्स ऑफ कोर्स हैज नो रिप्लेसमेंट. तो सिस्टम तो रहना ही है. करेक्ट. आप जो बोल रहे हो कि 10 से ज़्यादा लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, एक चीज़ बिजनेस ओनर्स को मुझे ऐसा लगता है शुड लर्न, एंड इट इज़ अ हार्ड थिंग टू लर्न, चिराग, कि इट इज़ ओके टू लेट गो पीपल. वो टॉक्सिक तब होता है जब पाला गया, जब जाने दिया गया तो टॉक्सिक नहीं होता. पर रिप्लेसमेंट लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है. वो तो हमारा काम ही है. आप और मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही खोल रखा है. You will realize, and if you promise yourself, Chirag, you are one of the finest training institutes on earth, you will work better. Don't hire people from the expectation of they will be with you for 20 years. Okay. With the changing environment, changing mindset of people want to shift very soon. तो आपके साथ जितना टाइम रहे, आप थोड़ा और मांग सकते हो टाइम, थोड़ा और मांग सकते हो, and that is great. So ask smaller extensions than for 20 years of commitment. So systems, of course, should be there. Probably लोग कम लगेंगे. Correct. तो toxic environment कम होगा, जो efficiency बढ़ जाएगी. Systems तो चाहिए. Correct. जो आपने बात की कि people want to move out, स्विच करना बहुत कॉमन हो गया है. तो ये जो ब्रेन ड्रेन है, नॉट इंडिया टू सम अदर कंट्री, बट फ्रॉम टीयर 3 टू टीयर 2 और टीयर 2 टू टीयर 1, ये अभी भी बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि पहले ऐसा होता था व्हेन यू आर इन टीयर 1 सिटी तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती थी, बट टुडे व्हेन वी कंपेयर टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी आई फील दैट उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ है. Opportunities, of course you are right. Okay. I shifted back from a tier 1 to tier 2. Correct. And
and I would say that we are doing pretty good. तो अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है, आपको किस तरीके से उस पर काम करना है. बस मुझे ऐसा लगता है शिफ्ट जब हो जाते हैं, जब हम जियोग्राफिकल लोकेशन शिफ्ट कर देते हैं, हमारा माइंड तैयार हो जाता है ज्यादा मेहनत करने के लिए. ओके. लोग अब उसी जियोग्राफिकल लोकेशन पे रह के मेहनत कम करना चाहते हैं. If you're getting me, if you realize a Bombay person in Bombay will not work that much. जितना वो पढ़ लिख के यूएस शिफ्ट हो गया वहां जितनी मेहनत करेगा. Correct. It is not only in India that people are shifting from one city to another, one tier to another tier. नागपुर से मुंबई शिफ्ट होगा, पुणे शिफ्ट होगा, उसका दिमाग बोलेगा यहाँ पे ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, दोस्ती यारी नहीं है, टाइम का क्या करूं, मेहनत कर लेता हूँ. लोकल इंसान यही हमेशा अपनी दोस्ती यारी, रिलेटिव, शादी और इन सब में ज्यादा लग जाता है, कहीं फंक्शन अटेंड करने में ज्यादा लग जाता है, तो मेहनत कम होती है. It has directly proportionate to how what input are you giving and output you're getting. पर गलत तो नहीं है सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाना? बिल्कुल गलत नहीं है, उसका राइट प्रोपोर्शन होना हर एक चीज का. समोसे हफ्ते में कितने खाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन रादर नहीं खाना. करेक्ट. आई थिंक इट्स जस्ट लाइक दैट. तो खुद के दिमाग को जियोग्राफिकल लोकेशन शिफ्ट हुआ तो मेहनत करूंगा. अगर उस माइंडसेट से हटा दिया, मैं जहां हूं वहां मेहनत करूं, आउटपुट तो यहाँ पे भी आ जाएगा. करेक्ट. एंड दीज डेज दीज ऑर्गेनाइजेशन, BNI, कॉर्पोरेट कनेक्शन, ये दीज आप जहाँ बैठे हो वहाँ आपको पूरे दुनिया से कनेक्ट कर देता है. 100%. सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट दीज डेज. So, have you ever had to work with someone who just doesn't get it? पर काम तो करना पड़ेगा. So, how do you handle these kind of people without losing your mind? ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है. Correct. एवरी बिजनेस ओनर फेसेस दिस. Correct. एंड इफ यू आर फेसिंग दिस, ट्रस्ट मी, you are living in the right world. Correct. ये तो इमेजिनरी वर्ल्ड है. मुझे जिसके साथ काम करना है, जैसा मुझे इंसान चाहिए वैसा ही मिल जाए. So 2 ways of looking at it, Chirag, probably. The first one is not every peon can be a great manager. आपके साथ वो 25 साल से है माना, लेकिन वो 25 साल से रह के ग्रो हो के एक सर्टेन लेवल तक तो जरूर आ जाएगा. शायद हेड ऑफ प्यून बन जाए, शायद कुछ प्यून ऐसे मिल जाए जो अच्छा मैनेजर भी बन जाए. बट डोंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन. अगर ऐसा हो चुका है, what we do, अगर ऐसा हो चुका है तो we quickly get back to the original position. अगर आपने पोजीशन एलिवेशन दे दिया, and if it is not working, it is bad for both the people. वो भी ज्यादा परेशान हो रहा होता है. Okay. और आप तो हो ही रहे हो, क्योंकि उसको हमेशा सेल्फ डाउट में छोड़ के जाना होता कि यार मैंने ये तो बराबर नहीं किया, ये मैं बराबर नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वेल. So don't leave him also, her also in that doubt, position of doubt, and don't stay troubled also. So have communication between the two, और उसको वापस से realignment कर लेते हैं. That is one. Or the second probability is give him to the right person to handle. Okay. And you move out of it. Okay. So first one is the first I would recommend. अगर फिर भी नहीं करना है तो फिर किसी और के हाथ में दे दो संभालने के लिए. How do you judge if the person is really genuine या फेक रहा है? Genuine. You interact with a lot of people. तो लोगों को पढ़ना तो आ गया है आपको. वो बताइए थोड़ा सा, कैसे पढ़ सकते हैं लोगों को? कैसे पढ़ सकते हैं लोगों को? कितना जेन्युइन है, कितना फेक रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना काम का है? मुझे ऐसा लगता है हर वक्त लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए. Okay. People who are also in face reading, उनके साथ भी बैठ के लोग uncomfortable नहीं होने चाहिए. Okay. So if you meet a astrologer, उसने हाथ मांग लिया तो discomfort हो जाता थोड़ा सा. मतलब Correct. You will start knowing about my life. Correct. Similarly, जिनको पढ़ने का इंटेंशन है वहीं ये सिस्टम अप्लाई करना. Otherwise don't start applying it everywhere. बड़ा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा. Okay. So if you want to know somebody, great. Follow this. What I follow is ask one question in 4 to 5 different ways. Okay. And see how the answers are.
If the pattern of answer is shifting, then probably you have to recheck whether you want to go ahead with that person. Pattern of answering should be the same because the question is the same. You've structured it in a different way. If that makes sense. 100%. That is very very beautifully बहुत बढ़िया insight है वो. If the person who gets that, आप बहुत अच्छे से जज कर सकते हो if the person is Changing answers. genuine या changing answers या झूठ बोल रहा है. Let's say for an example, हम यहाँ से निकले और रास्ते में जाते जाते एक डॉग बीच में आ गया और मैंने ब्रेक लगा दी. That situation, how do you handle? अगर कोई हर्ट हो गया तो how do you handle? And in the different ways you ask the same question and just see, observe the answers, and don't do this with everybody. 100%. That's the trick. No, you recommend doing this with friends or with the people you are in business relationship with? फ्रेंड्स को फ्रेंड्स रहने दो यार. वहाँ I मत totally believe that. हाँ, जो लोगों को पढ़ने वाली बात है वो आप जहाँ पे आपका पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पढ़ लो तो ठीक है. वहाँ कर लो तो ठीक है. दोस्तों के साथ में तो वो माइंड थोड़ा स्विच करके ही बैठना चाहिए. स्विच करके बैठना चाहिए. That is one great thing. And if you want to do business with somebody, one of the finest things one of my old partners he taught me. He said, भावेश मैं उसी के साथ पार्टनरशिप करता हूँ जो मेरे साथ 3 दिन के ट्रैवल पे चलने के लिए तैयार है. Okay. Beautiful advice. I have taken this advice very deep in my heart. I use it every time. 3 दिन में वो बोलते हैं मुखौटा चेहरे पे 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकता. मैं नहीं बोल रहा हूँ सब लोग आप और मैं मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, बट कुछ तो दिन में एक कॉल आएगा जिसमें अलग तरीके से बात होगी. दिन में एक तो मोमेंट आएगा जिसमें स्ट्रेस में भावेश कैसे बात करेगा, चिराग कैसे बात करेगा, ये पता चलेगा. It is not about not doing partnership with that person. It is about what to expect in the partnership and what not to expect. Got it. अगर आप और मैं पार्टनर कर रहे हैं और नेगोशिएशन स्किल्स हमें 3 दिन में पता चल जाएगा, वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि हमें नेगोशिएशन स्किल्स किसके बेटर हैं, उसने वो करना चाहिए. सो हमारी क्वालिटीज हमें पता चल जाएंगे. जजमेंट शुड नॉट बी, अगर बहुत ही अलग पर्सनालिटीज हैं, डाइवर्स पर्सनालिटीज हैं, तो डोंट डू पार्टनरशिप. Okay. वैल्यू सिस्टम सेम होना चाहिए, डाइवर्स पर्सनालिटीज भी चलते हैं. Value system. Correct. The whole point is 3 days will help you identify whether that value system is good. So that comes to partnership, short term में identification of people, whether किसके साथ long term relation रखना है, is one question in multiple types. Very very beautiful insight. But इसके अंदर फिर second line of question आता है, how do you handle ego clashes? Communication. किसके एंड से होना चाहिए? दोनों. अरे आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों के एंड से होगा तो फिर ईगो क्लैशेस होंगे ही नहीं ना. So true. अगर वो नहीं कर रहा आप कर लो, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप करो. ऑथोरिटी शिफ्ट नहीं हो जाएगा? होगा. देन बैलेंस करना होता है. पर जिसका ऑथोरिटी पावर ऊपर है वो तो अपनी ही इज हैप्पी विद दैट. So one has to judge. I have to judge कि मैं अथॉरिटी शिफ्ट ना होते हुए कैसे करूं. प्रॉब्ली मैं किसी से मैसेज भिजवाऊं और आके मिल लो. अगर वैसा नहीं ही हो रहा है कि नहीं अथॉरिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो वहां जाके वो कॉन्वर्सेशन ही मत करो. जस्ट गो एंड से हाय हेलो. तो टॉपिक ही नहीं खोलेगा तो अथॉरिटी शिफ्ट कहाँ से होगी. पर कोई की डिसीजन है तो बात तो करनी पड़ेगी. तो बात जो शुरू करेगा वो अथॉरिटी तो मेंटेन रह जाएगी. ओके. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स. आप पोजीशन से अथॉरिटी की बात कर रहे हो. Let's take an example. If you say भावेश BNI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो भावेश ने जाके डायरेक्ट किस लेवल तक जाके बात करना चाहिए. अथॉरिटी शिफ्ट होगी क्या? That purely depends on the topic and everything. अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जाके मेंबर से बात करनी है तो मेंबर को आना चाहिए. करेक्ट. नहीं ये तो लेवल्स अलग अलग हो गए. मैं सेम लेवल की बात कर रहा हूँ. बोथ यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर टॉकिंग, ईगो क्लैशेस है. अरे वाह, ये तो ब्यूटीफुल एग्जांपल है. ये कम्युनिकेशन से बहुत इजीली हैंडल होता है. एंड आई वुड से क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी यू वांट टू मेक. ओके. इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, बेटर वोकैबुलरी, बेटर क्लियर, ओपन एंडेड, तो अथॉरिटी शिफ्ट नहीं होती. धीरे धीरे वो अथॉरिटी या तो अभी आपको लग रही है 5 मिनट पहले नीचे थी तो 5 मिनट बाद ऊपर हो जाएगी.
So authority and communication is what I'm saying is the finest thing humans have. 100%. The most clear communication on earth any being can do is human being. Right. Make right use of it. राइट आई फील अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना तो वो तो हो थोड़ा जाएगा। बहुत ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं ये पड़ता। चलता रहता है पर Very well मैनेज said. हो जाता है. वेरी वेल सेड। और हमेशा जरूरी नहीं है कि आप उसी इंटेंशन से जाओ कि मुझे ही अथॉरिटी ऊपर। सही चीज होनी चाहिए, दोनों को पटनी चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सही चीज होनी चाहिए. सही चीज होनी चाहिए। इट शुड बी अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि एक साइड की सुन के डिसीजन बनाना एक एक पैटर्न बन जाता है लाइफ का, उसको ही ब्रेक करना है। तो सही चीज होनी चाहिए। ग्रेट. दोनों को जो पटे वो सही है। दोनों को जो पटे वो सही. ग्रेट. आपसे लीडरशिप, लाइफ, सारी चीज़ों का मतलब ज्ञान तो आपके पास बहुत है. मैं शायद पूरा इस पॉडकास्ट में एक साथ नहीं डाल पाऊँ. एक सेकेंड राउंड करना पड़ेगा उसका. बट बिफोर क्लोजिंग आई वुड लाइक कि आप एक 1 or 2 स्टोरीज बताइए विच हैज़ हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू इन द ऑर्गेनाइजेशन और वेर एवर यू फील कि किसी बंदे की लाइफ ही चेंज हो गई थी या कुछ एक क्रेजी सा हो गया था जो अनएक्सपेक्टेड सा था. A recent story I would say, मैंने एक रिद्धि के कोर्स कर रही थी तो मैंने रिद्धि को बोला यार रिद्धि आई वुड ऑल्सो लाइक टू साइन अप फॉर दैट. और एक पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है पुणे यूनिवर्सिटी से, इट इज कॉल्ड लिसनिंग. इट इज पीजी डिप्लोमा इन लिसनिंग. हमने वो कोर्स किया. पहले तो मैं 2 महीने डाउट में था कि लिसनिंग रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ अ टाइम. अगर मुझे आपको सुनना है, आपके इमोशंस को समझना है तो बहुत समय लगता है. बट उस पर क्यों नहीं लगता टाइम, उसमें टाइम नहीं लगता है बाय द वे. क्यों नहीं लगता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट रिसेंटली इट सो हैपेंड अ न्यू मेंबर शी कॉल्ड मी and I will not name that person. Okay. Doesn't look good. Okay. Without her consent to take the name. But बहुत पुरानी मेंबर नहीं. I understood कि वो 3-4 महीने पुरानी मेंबर होगी. और उसने कॉल करके चिराग शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आई वांट टू मीट यू. आप किसी से भी आपको कुछ शेयर करना है आप तो पहले टाइम लेने की कोशिश करते हो. करेक्ट. तो उसने वही करने की कोशिश की. एंड आई सेड पर्पस जान सकता हूँ, एजेंडा जान सकता हूँ, आपको क्यों लगता है मुझसे 1-to-1 होना चाहिए आपका. और जब ये सब बातें निकली तो उसने कुछ कुछ स्टोरीज बताई. मैंने बोला कोई रीसेंट इंसिडेंट्स बताइए. उसने रीसेंट इंसिडेंट्स बताई. एंड इन द 4th-5th क्वेश्चन शी स्टार्टेड क्राइंग ऑन द फोन. आई कुड हियर हर हैवी. तो मैंने उसको बोला इट्स ओके, इवन इफ यू क्राई इट्स ओके. And the call went on for 30 seconds where I was not speaking, she was crying. She took 30 seconds to come back to her original position and start talking. Sir, I'm really grateful that what BNI has done to me. College के बाद दोस्त सपोर्ट ये दोनों ही गायब थे. Agreed. और यहाँ दोस्त सपोर्ट दोनों इतने प्यारे बन गए. बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए थी कि मैं आपसे मिलूं और आपको बोलूं थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग BNI टू नागपुर. मुझे नहीं पता मैं मिल के क्या करूँगी, बट आपने क्यों सोचा सिर्फ इतना ही जानना है कि BNI को नागपुर में लाना चाहिए और आप लाए तो हम फ़ायदा उठा पा रहे हैं. सो दैट इज समथिंग दैट हेल्प्स रिद्धि एंड मी पुट दैट एफर्ट. अपने if I can share a recent success story. Yeah. BNI Nagpur is world's #1 region. Wow. There are 1419 regions. तो हमारे अलावा 1418 और regions है. लेकिन नागपुर is ranking 1. And somebody very rightly said नागपुर तो कुछ अलग नहीं कर रहा है. नागपुर के members ही कुछ अलग कर रहे होंगे. Crazy. तो this is true. Nagpur BNI members, I'm really thankful to the leadership teams, members. They're showing support to each other, if not to everybody, to at least a couple of people. जिसके कारण सब कहीं ना कहीं benefit हो रहे हैं. And these smaller stories are very close to our heart and makes us even pick up calls at 11, work at 1 PM and we are completely okay. वो बहुत मजा आता है. लोगों की सक्सेस स्टोरीज ही आगे पुश करती हैं काम करने के लिए. फुलफिलिंग लगता है थोड़ा. फुलफिलिंग लगता है, बहुत फुलफिलिंग है. ग्रेट.
So that is one recent story that I was talking about. एक बहुत सारे collaborations हो रहे हैं BNI में. Correct. And I think जैसे the process of networking says that you connect with people, you celebrate with people, and then you collaborate with people. If you see these three words, the sequence is superb. And there are 3 R's also of networking. They say you remember somebody, you recollect somebody, and then you refer somebody. Correct. Right? So let's come to that C, right? So you connect with people, you're okay celebrating with them, you opened up a bit, you celebrate with them, and then happens collaboration. So BNI Nagpur today is in that situation, or I would say even Corporate Connection today is in that situation, जहाँ collaborations आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि वो 7 साल की जर्नी ना वो 2 चीज़ें देख चुकी, कनेक्ट सेलिब्रेट देख चुकी, Correct. अब collaborations देख रही है. So a recent collaborative story that I heard about a member, वो 7 साल पुराने member हैं, 8 साल पुराने member हैं, और ये जो नए member थे, जो 3 साल पुराने member हैं, उनका collaboration आपस में ऐसा हुआ है that they formed another company and now schools are their target markets and they've done 3 odd crore worth of turnover in 3 months. Wow. So new पहले 3 महीने में 3 crore turnover is excellent. So 100%. lot of collaboration. So anybody who's doing networking, don't expect collaborations to happen on day one. It'll happen. First connect and celebrate with them. Collaborations will happen. So these 2 stories are something that I would like to put forward. एक बहुत पुराने member की है, एक recent member की है. Great. I would like to thank you for giving your time. बहुत ही बढ़िया insights थे आपके, एंड वो जैसे मैंने कहा वो एक पॉडकास्ट में तो ख़त्म नहीं होंगे. So but we'll end this today and Thank you so hopefully much. we'll see you soon on the channel again. Very soon. Thank you so much. Thank you.